Hello guys, I hope all of you are ready and all of you are aware about why we are conducting this webinar, and let's try to hit on the target straight away. So I will quickly tell you about what all comes into the e-litmus, and then we will focus majorly on how to prepare for e-litmus and what should be the strategy of giving the examination. So these would be the two key points. Now this examination is divided into three sections: quant, reasoning and verbal. So in each of these sections, you get 20 questions, and for each of these questions, there are 10 marks awarded for it. So 20 into 10, 200 for quants, 200 for verbal, and 200 for reasoning. So that takes the total tally to 600 marks. But for our convenience, we will take 1 mark for each question, just considering. So we will consider the total paper is of 60 marks instead of 600. We can obviously extrapolate it to 600 marks at any point of time. So that's the first division of the paper. The second thing is the second thing is just a minute, guys, just a minute. Yeah, the second thing which is important is that how to talk about the syllabus of each of these sections. Now, what are the important questions and what are the important topics in each of these? That's the primary criteria for us. Okay, so we are done with the number of questions in each section. Now talk about the one of the sections. Let's talk about the verbal section. What all verbal section will consist of? Verbal section will consist of 15 questions of reading comprehension. Guys, please write it down so that we can strategize it at a later point of time. Right. So 15 questions of reading comprehensions. There will be 3 RCs. What I'm saying is the exact pattern of the e-litmus that you will ever get at any point of time. So 3 passages of reading comprehension, out of which 2 will be abstract passages and 1 will be database passage. That's the fact-based passage. Now the level of RC will be difficult than MCAT for sure, and it would be easier than CAT for sure. It would be approximately at the same level as that of Infosys verbal paper. So RCs will be convenient. It will not be very disturbing. So, but you will have 2 abstract passages and one fact-based passage. Apart from this, what about the rest of the 5 questions? There will be 2 questions of parajumbles, jumbled paragraph that we will get. Apart from that, there will be 2 questions of sentence correction and sentence completion and 1 question of preposition. So this is the exact demarcation, exact division of the verbal section. Next is the reasoning section. The reasoning section will consist of 3 questions of crypt arithmetic multiplication problem. So I am getting into specifics of it. So guys, please note down each of the things. So it will have 3 questions of crypt arithmetic question. That means you will have one problem, something like ABCD, ABC into DEF will give you something like EFGHIJ. Okay. And on the basis of this, there will be 3 questions based on one problem. So it will not be 3 problems. It will be one problem only, but there will be 3 questions based on one problem. So if I am able to crack this crypt arithmetic multiplication, then I will be able to crack all the 3 questions. So this is about crypt arithmetic. The second thing is that then there will be huge amount of data arrangement into it. So 3 questions of crypt arithmetic, 8 questions of data arrangement. So there will be 2 passages and 4 questions will be attached to each of the passages, and you need to crack the data arrangement thing. Then next is DI and data sufficiency. There will be one set of DI, data interpretation. That will be a multiple diagram DI. So it will have 2 diagram, 1 pie chart, 1 table, 1 caselet or something, or combo of this. So it will have 2 to 3 diagrams in that, and there will be 5 questions based on that. Then the next thing is data sufficiency. There will be 4 questions of data sufficiency. So if you have been solving data sufficiency of the level of the CAT, then there should not be any issue. Now, out of these 4 questions of data sufficiency, 4 will be quant based and 4 will be reasoning based. I hope you understand the difference. The difference is that when it is quant based and reasoning array based, that means you will have questions of diamond work into a DS question. You can have a reasoning based question like blood relation into a data sufficiency. So the topic of the question will be quant based for 2 and quant and reasoning based for 2 of the questions. So I'm done with the reasoning section division. The next is quantitative aptitude. Quantitative aptitude will consist of questions majorly from, I'm giving you the exact chapters. You will get to see
good number of questions from number system, permutation combination, probability, progression, mensuration, and arithmetic. Arithmetic means percentage, profit and loss, SICI. So you'll see all the questions. But if you ask me where will be the major division, approximately 2 to 3 questions on number system, 3 questions certainly from permutation, combination, and probability, 1 to 2 questions based on progression and set theory. That is Venn diagram. So I consider set theory as same as progression. So 2 questions based on set theory and progression guaranteed. 3 questions of permutation, combination, probability guaranteed. 2 to 3 questions on number system and 2 to 3 questions on time, speed, distance. 1 question from time and work, and rest every other chapter will have one question each. So that's what the division is. So I'm giving you the division of exact division of 12 questions of the quant section, and the rest 8 you can take care of. Next is, let's talk about the next big thing in this. The next big thing in this is the next thing, big thing is this, the negative marking. How will you tackle the negative marking now? The negative marking, how will be able to take care of this negative marking thing in it? Okay, so how the negative marking functions in this? Now, if I'm attempting 25% questions, if I'm attempting 25% questions and there is nothing wrong in it, there is no problem with it. So the negative marking will come into picture only when I have done more than 25% questions incorrect. So let's suppose if I'm attempting a verbal section and I have attempted 12 questions, and out of 12 questions 4 are incorrect and 8 are correct, then I will get no negative marking. I will get marks for my 8 questions, and there will be no negative marking for the 4 questions that I did wrong. Let's suppose another section is, let's say, quant, and let's say I did 4 questions, and out of which I did 5 questions wrong. Now there will be negative marking for each of the questions. That's how the differential negative marking functions in the e-litmus section. I hope you have understood. If there's any further query, I will take it further. So the negative marking will function section wise. It will not function paper wise. The total paper का 25% होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको हर सेक्शन में 25% से कम गलत करने होंगे. अगर आपने उससे जितने आपने अटेम्प्ट किए उससे कम गलत करने होंगे. जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसका कोई नेगेटिव मार्क आपका नहीं कटेगा. ओके, अच्छा जी, अब हो गया बात इसका. अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. पेपर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज द सेकंड बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आफ्टर थर्ड बेस्ट, लेट्स से आफ्टर CAT, UJAT, which is almost a purely aptitude test. So this will be third or fourth difficult examination. So e-litmus is clear to be a very good examination. Examination is very good. Only very good candidates or candidates who have been working hard on their skills will be able to crack the 90 percentile bracket, but the rewards are huge. So if you are able to crack 90 percentile in quant, 90 percentile in reasoning, and 90 percentile in verbal in all the 3 sections, trust me, you apply to a company, you will get the call. So there are companies of mechanical, EC, electronics, IT, instrumentation. You name the company, you will have the companies in the e-litmus list. So if you can score 90, 90, 90 in all the 3 sections, so there is no company that will not take you to the technical interview. So obviously your scores of the e-litmus will go to the next round, and you need not give any aptitude test. So you need to face the technical interview of the company for which you are applying for. That's how it basically functions. I hope I'm making sense. Now the next thing is that we need to focus over here is what to do in the examination, how to go about writing this examination, which is the most difficult part of it. पहली बात तो तैयारी, और तैयारी के बाद स्ट्रेटजी. 2 चीजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमको. अब हमको पेपर पैटर्न समझ में आ गया, 2020 क्वेश्चन समझ में आ गया. मैंने आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक वाइज डिवीजन करके ही बता दिया कि भाई किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन नहीं आएगा. अब पॉइंट यहां पर ये बनता है कि भाई आगे कैसे ले जाएंगे इस चीज को और तैयारी कैसे करेंगे. अब आप सोचो, सबसे पहले हम एक एक सेक्शन को उठाते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि पेपर देते वक्त मुझे किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले उठाते हैं, बात करते हैं वर्बल की. अब आप वर्बल की तैयारी करने बैठे हो
और वर्बल तैयारी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओवरनाइट तो सही नहीं होगा। आप कितनी मेहनत कर लो, आपसे पहले बहुत लोगों ने ट्राई किया है, मैंने भी ट्राई किया है, और मुझसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, मेरे बाद भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, चाहे वो की लिटमस हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो जैट हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो। तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक रात में सही होने वाला चीज नहीं, चाहे अब मैं कितनी अच्छी तरीके से चाहता हूं कि मैं 90% चला जाऊंगा, मैं 24 में से 20 घंटे काम करने लग जाऊंगा, लेकिन मुझे बस ये लिटमस में 90 का स्कोर आ जाए, तो ये इतना ओवरनाइट वाला चीज नहीं। इतना आसान होता तो हर आदमी कैट भी निकाल लेता, हर आदमी की लिटमस भी निकाल लेता, हर आदमी हर एग्जामिनेशन निकाल लेता। ठीक, तो फिर करें क्या भाई, आपको रीडिंग करने की आदत डालनी चाहिए। लगभग 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको रीडिंग करना चाहिए। ट्रस्ट में, आप ई लिटमस के लिए मुझसे कहो तो मैं कहूंगा आप इंग्लिश में वर्बल में कुछ मत करो, आप सिर्फ रीडिंग करो, और ये समझ लीजिए कि रीडिंग करना ही आपका कोर्स करिकुलम है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू राइट गिव 16 to 17 hours in a day, then you should give 5 to 6 hours of reading। तो अगर आप 5 से 6 घंटे की रीडिंग करते हो और आप 60 दिन कर देते हो, 60 days कंटिन्यूसली, भाई अब आप कहोगे ये क्या असंभव वाली बात कर रहे हो भाई, लेकिन अब असंभव चीज आपको चाहिए तो असंभव चीज के लिए असंभव मेहनत भी करनी पड़ेगी, लगभग असंभव अगर आप उसको असंभव कह रहे हो। भाई मैं भी अपने कैट वाले दिनों में 19 20 घंटे पढ़ता था, दो ही काम होते थे, पढ़ाई करना या सोना, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं होता था मेरे पास। तो सभी को करना पड़ता भाई, उसके बिना काम होता नहीं, इसलिए चलता ही, दुनिया ऐसी है। तो अगर आप 4 से 5 घंटे रीडिंग करते हो तो आप 60 दिन में अप्रोक्सीमेटली 300 आवर्स ऑफ रीडिंग कर लोगे, दैट शुड बी गुड इनफ एज फार एज द प्रिपरेशन कंसर्न। आप जंबल पैराग्राफ छोड़ दो, आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट रीडिंग से ही इतना कंटेंट मिल चुका होगा कि यू वुड बी एबल टू बी क्लोज टू इट इफ नॉट फार अवे फ्रॉम इट। ठीक, दूसरी बात करते हैं भाई, दूसरी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में कैसे क्रैक किया जाएगा भाई, रीजनिंग सेक्शन में क्रिप अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है, बिल्कुल फ्लक्स ऑफ द मैटर की तरह करता है। और क्रिप अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एन इजी जॉब टू डू, वेरी फ्रैंक, आई विल बी वेरी फ्रैंक। अब डीआई भी आ रहा है, डीएस भी आ रहा है, और क्रिप अरिथमेटिक भी आ रहा है, तो बहुत कायदे से उसने अपना पूरा जाल फंसाया हुआ है। अब मैं कहूंगा डेटा सफिशिएंसी, अगर देखो हर पेपर में एक लूप होल होता है और उस लूप होल को पकड़ना पड़ता है, तो मैंने आपको तो वर्बल के लिए कह दिया, वर्बल में आप सिर्फ रीडिंग करो, उसके अलावा कुछ ना करो, एंड दैट शुड बी गुड इनफ। आप बाकी कोई काम ना करिए, अच्छी रीडिंग करिए, डिफरेंट टॉपिक से रीडिंग करिए, दैट विल बी गुड इनफ। नेक्स्ट इज भाई कि इसमें क्या करेंगे रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में आपको डीआई चाहिए अपने फेवर में, डेटा सफिशिएंसी चाहिए। डीआई के 100 सी और 100 सेट्स 2 डायग्राम वाले करिए, 2 डायग्राम वाले करिए, एक डायग्राम वाले मत करिए। यू नीड टू डू अ 2 डायग्राम डीआई सेट्स, जिसमें 2 डायग्राम होते हैं। तो जब 2 डायग्राम होंगे डीआई सेट्स के, तो बिल्कुल हिसाब किताब सेट बैठेगा और आपके वो 100 सेट्स आपको लगभग ले जाएंगे। तो यहाँ पे वीक कॉर्नर देखिए, वीक लिंक क्या है, मैं डीआई से उठाऊं और डेटा सफिशिएंसी सही करूं। डेटा सफिशिएंसी में प्रैक्टिस का मतलब कहाँ पे आप मूर्ख बन रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ डेटा सफिशिएंसी करने का तरीका क्या है, आप एक एक्सरसाइज सेट लीजिए, एक्सेल शीट लीजिए, मैंने 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के किए एंड आई गॉट 7 out of 10 करेक्ट। फिर मैं दूसरा सेट डेटा सफिशिएंसी का तैयार करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, 10 मिनट 10 सवाल और 10 मार्क्स। इस तरीके की डेटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक कि आप 10 out of 10 वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाते डेटा सफिशिएंसी, यू शुड कीप ऑन डूइंग इट and take a target of approximately 500 questions, 25 to 250 questions of reasoning based DS and 250 questions of quant based DS। तब आप जाके डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी मेरे लिए इस पेपर में 100% करेक्ट स्ट्रेटजी वाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने डीएस गलत कर दिया तो मुझे बहुत डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, दैट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट श्योर whether I will be able to do it in examination also or not। Correct। The third point is about data arrangement। Data arrangement again it comes from the practice। आपको कैट से लेके ई-लिटमस के पेपर्स तो नहीं मिलते बाजार में, लेकिन आपको जितने भी पेपर में डेटा अरेंजमेंट मिल रहा है, डेटा अरेंजमेंट के भी आपका कम से कम 100-150 सेट्स का प्रॉब्लम होना चाहिए। और डेटा अरेंजमेंट करते वक्त एक प्रॉब्लम आएगी, आपको बताता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ई-लिटमस के लिए कर रहे हो, चाहे कैट के लिए कर रहे हो, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आधा आधा घंटा लग जाएगा, एक एक घंटा लग जाएगा, और आपका वो डेटा अरेंजमेंट का सेट पूरा नहीं होगा और आपका मन नहीं करेगा इस चीज को ज्यादा करने का। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ी जीत होती है। ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, ये साथ मेरे साथ भी हुआ है। शायद अपना डेटा अरेंजमेंट पहला सेट जब मैंने किया होगा तो 15 मिनट खर्च कर दिए होंगे,
धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता गया, टाइम कम होता गया। वो इसलिए आपको डेटा अरेंजमेंट सेट के साथ बैठना पड़ेगा। रीजनिंग कोई टीचर नहीं सिखा सकता, रीजनिंग कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग खुद से ही सीखी जाती है। तो डेटा अरेंजमेंट सेट आप लोगे, बैठोगे, सवाल करोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कॉम्प्रहेंडिंग स्किल्स क्या होती हैं। ए इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी का मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बी के राइट में ए है। बी के राइट तो ए है, बट बी के जस्ट राइट में ऐसा मतलब नहीं होता है। तो आपकी कॉम्प्रहेंडिंग स्किल्स का छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आइदर और के बीच में डिफरेंस समझ में आने लगेगा। इफ ए कम्स देन बी विल आल्सो कम का मतलब समझ में आने लगेगा। ये सब तब होता है जब आप करते रहते। ये सब सवाल करने से आता, बिना सवाल करे नहीं आएगा। दैट्स वन थिंग। तो डेटा अरेंजमेंट में प्रैक्टिस चाहिए। आप सवाल करते रहो, बस जूझते रहो। मतलब सवाल पूछने में आपको लगे कि अगर मैं किसी सवाल पूछ लूंगा तो सवाल खराब हो जाएगा, अब मुझे वैसा सेट दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ। तो वो सेट मैं खुद करना चाहता हूँ, तब आंसर करना। तो और ऐसा आपने किए 40-50 सवाल, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि भाई ये कहानी बन सकती है, ये पूरा प्रोग्राम इन है। अब आप उससे भागोगे, चालों की मदद दोगे, तो डेटा अरेंजमेंट और रीजनिंग नहीं कभी आई भाई। डेटा अरेंजमेंट आपको कभी नहीं आएगा अगर आप भागते रहोगे इधर उधर। चलो मैं उससे मदद ले लेता हूँ, मदद लेना गुनाह नहीं है, पॉइंट इज दैट कि लेकिन उससे लर्निंग कम होती है। लर्निंग ज्यादा करनी तो डीए सेट किया, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा फिर से वापस कल उसी सेट को करें। फिर आधा घंटा दिया, नहीं आया, और उसके बाद आप से नहीं आ रहा तो बिल्कुल मदद दीजिए, लेकिन उसके साथ जूझिए कि सवाल जब मैं करूंगा तो मैं सीखूंगा। सवाल जब कोई और करता है तो वो सीखता है। रीजनिंग सीखने वाली चीज है। अब आते हैं, तो डेटा अरेंजमेंट होल्ड्स द की इन दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर मैथमेटिक पे सवाल करने पड़ेंगे भाई, सीधी तरीका ये है, सवाल करने पड़ेंगे। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको मैथमेटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, चैनल पे भी मिलेंगे, आप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू टैकल क्वांट। क्वांट में सबसे अच्छी बात और सबसे खराब बात क्या होती है बताता हूँ। क्वांट में सबसे अच्छी बात होती है, सबसे खराब बात है कि पर क्वेश्चन टाइम सबसे ज्यादा लगता है क्वांट में। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर मिनट गिनोगे तो आपको लगेगा भाई बहुत टाइम लग रहा है। करेक्ट। यहाँ पे वैसे टाइम की ऐसी कोई खास कमी है नहीं, खूब टाइम दिया गया पेपर में आपको करने के लिए। उसके बावजूद भी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बिकम्स द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट थिंग इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो भाई कितने टाइम में मैं वो कर लूंगा, कितने टाइम में मेरे पास आ जाएगा, ये सब सोचना, ये सब करना आसान काम नहीं है भाई। तो किया कैसे जाए, पॉइंट तो ये, तो मैंने आपको नेगेटिव बात बता दी कि भाई इसमें करने में बड़ी दिक्कत है, और आपको कट ऑफ तो बताई दी कि भाई कितने पे कितना हलचल अच्छा हो जाता है। क्वांट में मुझे वो क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें लिखा कम है, मतलब जिन क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा हो, उन क्वेश्चंस को मुझे डिले करना चाहिए, लास्ट तक छोड़ना चाहिए। अब मुझे मान लीजिए मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छा आता है, still I would go for mixture alligation question to be my first question in the paper, irrespective of कि मैं mixture alligation को कितनी अच्छी तरह जानता हूँ। Similarly, I will not opt for a time speed distance question irrespective of मुझे time speed distance कितना अच्छा आता है। ये एग्जाम स्ट्रेटजी के खिलाफ है कि अगर मैं इनमें से कोई भी ऑप्ट करता हूँ। आप कहोगे ऑप्ट करें क्या भाई, आप के लिए मना ही कर रहे हो। अब मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज। एवरेज बहुत आसान टॉपिक है, तभी मैं उसका नाम ले रहा हूँ। इसका टॉपिक से लेना देना नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे कभी भी फर्स्ट गो के क्वेश्चंस नहीं होते थे, आज भी नहीं होते, कल भी नहीं होते। तो अगर आप मुझे 20 क्वेश्चन दे दोगे और कहोगे सॉल्व करो, तो मेरी आंखें चाहे ना चाहे जाएंगी किस पे, मेरी आंखें जाएंगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, मेरी आंखें जाएंगी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पे, मेरी आंखें जाएंगी प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पे, और मेरी आंखें जाएंगी ज्योमेट्री के क्वेश्चन, मेरी आंखें जाएंगी सेट थ्योरी के क्वेश्चन पे। अब आप कहो क्यों ऐसा आप देख रहे हो, बेटा इन सारे के सारे चैप्टर्स में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसमें टाइम बर्बाद नहीं होता। जो टाइम बर्बाद होता है वो सारा का सारा इसमें बर्बाद होता है कि मैं उसको सॉल्व कैसे करूं। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि भाई, तो मुझे मेरा सारा टाइम, रीडिंग टाइम ऑफ द क्वेश्चन मेरा बिल्कुल जीरो हो जाता है, मुझे सिर्फ सवाल करने पे आना पड़ता है कि मैं सवाल करूं कैसे। सवाल करने पे आना पड़ेगा तो वहीं पर विक्ट्री है। तो वहां पे अगर मैं एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का सवाल करूंगा 1.5 मिनट, चाहे मैं हूं या आप हूं, चाहे मेरी कितनी अच्छी रीडिंग स्किल हो, तब भी मुझे 1 से 1.5 मिनट क्वेश्चन समझने में लग जाएगा। यहाँ क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं लगता, जितना भी टाइम लगेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये रही स्ट्रैटेजी
बड़ी वाली। अब बात करते हैं कट ऑफ कैसे निकलेगा। 90 90 परसेंटाइल लाना बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी कोई बात हो भी नहीं सकती। अब ये 90 परसेंटाइल आता कैसे, देख, हम पेपर, आधा पेपर दुनिया में लोग बर्बाद सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको नहीं आता है और बाकी सबको आता है, बल्कि है ऐसा नहीं। और हमें अपने होमवर्क की हुई चीजों पे विश्वास नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है। जब मैंने डीए के 100 सेट किए हैं, अपने से किए हैं, तो अगर मैं नहीं कर पाया डीए का सेट वहां पर, तो कोई और भी ना कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस जब आता है तब, जब आप पीछे से मेहनत करके आते हो। जब आपकी पीछे से मेहनत अच्छी नहीं होगी तो आपको हमेशा अपने आप ही सेल्फ डाउट में लगे रहोगे, भाई मुझसे होगा कि नहीं होगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं। ऐसा सेल्फ एग्जाम को लेकर डाउट हमेशा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट उससे उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। आपको अपनी ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं हो रही, दिक्कत ये हो रही। नाउ द अदर थिंग दैट इज कि आप कितने पे आएगा 90%। आप देखिएगा, आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हो सकता है, ये आपकी थोड़ा सरप्राइजिंग चीज होगी, हो सकता है कि 8 नंबर क्वांट सेक्शन में, मतलब 8 क्वेश्चन, मैंने कहा था वो 60, मैं उसको 20 को 600 नंबर, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं उसको 10 नहीं 1 मान रहा हूं। तो मैं अपनी सुविधा के लिए 600 नंबर को, 600 मार्क्स को 60 नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं क्वांट सेक्शन में शायद किसी दिन, किसी लिटमस के पेपर दिन 7 या 8 सवाल कराऊं, हो सकता है 6 सवाल कराऊं, और वो 6 सवाल थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन 7 सवाल पे मैं 90 परसेंटाइल छू सकता हूं। आप जरा स्टोरी को उल्टा देखना शुरू करिए, तब आपको समझ में आएगा पेपर हैंडलिंग कैसे करी जाती है। हम सोचते हैं अरे 20 सवाल, पहला सवाल आया मुझसे नहीं हुआ, और मैंने टेंशन बनाना शुरू कर दिया पेपर में, और मेरा पेपर गड़बड़ होना शुरू हो गया। क्वांट सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि किसी भी पेपर को खराब जरूर कर सकता है, अच्छा तो नहीं कर सकता। क्वांट सेक्शन की बात कभी कोई ये नहीं कहता बहुत बढ़िया क्वांट सेक्शन हुआ है मेरा, ये आज तक किसी ने नहीं कहा। ये जरूर कहा कि इस सेक्शन का पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने का प्रोसेस होना चाहिए, यू नीड टू बी वेरी डिफेंसिव इन द प्रोसेस। मुझे इस सेक्शन से बच के निकलना है, मुझे सेक्शन में बहादुरी नहीं दिखानी है, पहली बात तो ये। वैसे ये लिटमस के सारे सेक्शन में मुझे बच के ही निकलना है, लेकिन इस सेक्शन में, क्वांट में, हमेशा ये बात सच रहती है, मुझे कभी भी बहादुरी नहीं दिखानी क्वांट में। जितना मैं बच के निकलूंगा उतनी मेरी कहानी सेट होगी। तो आप सोच के देखो, मैं कह रहा हूँ 7 या 8 क्वेश्चन सही करना 90 परसेंटाइल पे आपको ला सकता है। एक आध पेपर ऐसे भी हुए लिटमस में, यहाँ 6 पर भी 90 परसेंटाइल लग गया है, तो हम वो नहीं मानते, लेकिन 7 या 8 नंबर पे भी मानते हैं। अब अगर आप सोचो पेपर में ऐसे जाओ कि मुझे सिर्फ 8 सवाल करके आने हैं, और मैं 8 सवाल कर लूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। और उसके बाद आप अटेम्प्ट करें अपने फेवरेट जोन जो आपने पहले से बना रखे हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, अरे अपना नंबर सिस्टम, और इसमें से 3 4 5 क्वेश्चन उठाना। ऐसा नहीं कि आपके ये सारे चैप्टर आसान आएंगे और मैं सारे करके आ जाऊंगा, इतना आसान गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं इनमें से जो 10 11 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से ही क्वेश्चन उठाऊं। 3 4 5 क्वेश्चन अगर धीरे से मैंने उठा लिए, तो मैं धीरे से निकाल रहा हूं कि भाई मैं ऐसा क्वेश्चन छूं जो मैं गारंटीड कर पाऊं। ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी अगर आपको सही में लिटमस देना है और अच्छा स्कोर करना है। तो आपने क्वेश्चन किया, अरे आप वो क्वेश्चन उठाओ जो कि बना हुआ है और इस जोन में है जहां पे मुझे क्वेश्चन देखने हैं। तो अगर मेरे पास शुरुआती लीड हुई और मैंने पहले 3 क्वेश्चन 10 15 12 मिनट में कर लिए, तो आप बात मानिए, आप कहानी निकल जाए। आप उसमें जरा सी मेरे 2 क्वेश्चन आ जाए, ऐसे जाता पेपर में, मैं जाता था ऐसे पेपर कि भाई मैं बस 3 क्वेश्चन करके आ जाऊं। जब मैं 3 कर लेता तब मैं कहता अच्छा 2 और कर लेते हैं बस। तो मैं देखता दो सब अगले नेक्स्ट कठिन कौन से हैं। जब मैं वो 2 कर लेता था, फिर मैं ढूंढता था अच्छा 2 और बता दो, कोई कोई दो और निकल जाए। अब मैं हो सकता हूँ कि उसमें एलिगेशन का एक बड़ा सा सवाल 10 लाइन का बड़ा कर रहा हूँ, हो सकता है मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का 10 सवाल कर रहा हूँ। इसलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे अच्छा करना होमवर्क में बहुत जरूरी है, वरना मेरे पास कभी बैकअप नहीं रहेगा। मैं कहूँ कि नहीं मैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम पढ़ के जाऊंगा, 12 सवाल और 12 में से 8 करके आऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं, मुझे भी पता है। तो समझ में आ रही है बात। तो ये बैकअप ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन हमेशा और ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। तो मैं पहले तो 3 सवाल कैसे भी कर लूं, 3 कर लेते हैं तो 2 और की अपेक्षा जगाता हूं, 2 और कर लेता हूं तो फिर कहता हूं जरा 2 और कर लूं, बस 7 पे पहुंचो, मैं पेपर बंद कर रहा हूं। दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी डन बेसिकली, राइट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज कि अब आपको
अगला काम क्या करना है, ये तो होगी क्वांट वाली बात। रीजनिंग निकालने का सबसे अच्छा तरीका है वीक जोन ऑफ द पेपर पे अटैक करिए। डेटा सफिशिएंसी का एक भी गलत सवाल मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, तो आई विल नॉट डू दैट। डीएस के बाद मैं डीआई पे आऊंगा, 7 सवाल पे ले जाऊंगा, लगभग 9 नंबर के आसपास आपकी रीजनिंग, 8 या 9 नंबर के आसपास आपकी रीजनिंग की कहानी 90 परसेंटाइल के आसपास होगी। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ऐसा ही जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। हम खुद तूफान लाएंगे पेपर में, हम ज्यादा करने की अपेक्षा रखेंगे और हम नंबर कम लाएंगे। मुझे क्वांट और रीजनिंग में 100 एक ही स्ट्रैटेजी लेनी है, 100% एक्यूरेसी, और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या आता है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या आता है तो फिर बहुत बेकार पढ़ाई करी है मैंने। तो डीएस और डेटा डीआई अगर मैं सही करूं तो आधी कहानी बन गई मेरी, आधी कहानी मेरी बन गई। मैं 7 सवाल पे पहुंच गया हूँ, किसी दिन गलती से 7 सवाल पे भी कट ऑफ आ सकता है। अब मुझे डेटा अरेंजमेंट का एक सेट और मैंने लाइन पार कर दी और मैं कट ऑफ बाहर कर दिया। तो इसीलिए वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसीलिए रखे ही गए हैं कि आपको एक डेटा अरेंजमेंट का सेट करना ही पड़ेगा, चाहे आप किधर से ही भाग के निकलो या अरिथमेटिक सॉल्व करो। इन दोनों के लिए मुझे पहले डीएस और डीआई 100% करेक्ट करने वाली स्थिति में आना पड़ेगा, तभी इस पेपर। अगर मैंने डीएस और डीआई 100% करेक्ट स्थिति में नहीं आया तो रीजनिंग सेक्शन लिटमस का दिक्कत कर देगा मुझे बहुत कायदे से। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज वर्बल। वर्बल में तो कुछ है ही नहीं, जितना आपको रीडिंग आएगा उतना आपके नंबर आएंगे, जितना रीडिंग नहीं आएगा उतना आपके नंबर नहीं आएंगे। So that was from my side. I would like to take questions from you if there are any questions. Arpit, Ajay. Yeah, thank you, sir. That was really informative session. So, guys, if you have any queries or questions, kindly post it in the chat box itself. We'll pick up the questions from there. Question in Yeah, chat. Mriga. Yeah, Mriga. Just write down the question in chat, please. Hello, Mriga. Students from which background can go for e-litmus? यार e-litmus तो एक open platform है. If you are a mechanical engineer, you are an instrumentation engineer, EC engineer, IT engineer, अगर जो जॉब आप लोगों को सबसे बड़ी आईटी कंपनी से देती हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बीसीए बिल्कुल आप दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इन्फोसिस, टीसीएस आपको कोई पैकेज नहीं देता। अगर आप जाएंगे कभी बैंगलोर तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होकर भी बहुत बढ़िया सैलरी पा सकते हैं, जो आपने आज तक एनआईटी ग्रेजुएट। इसीलिए ई लिटमस इतना फेमस एग्जामिनेशन हुआ है। So you can appear in these examinations. There's nobody that is stopping. There's apart from this, there's one examination CCQT, TCS CCQT, which has launched it. I will also request you, Ayush Bhatia, to write this examination also. Apart from this, okay. And तो आप पैकेजेस देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ही लिटमस में, आप यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस और कैपजेमिनी और कोग्निजेंट आपको 3.26 3.36 का पैकेज देता है। वहीं पर अगर आप ई लिटमस का 90% करने का मतलब आप ये समझते हैं, 90% करने का मतलब अगर आपने थोड़ी भी सही जगह अप्लाई किया और थोड़ा भी सही चला कार्यक्रम, तो यू विल बी मूविंग इनटू कंपनीज लाइक 9 लाख प्लस। तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे जो आप 4 साल में आपको इन्फोसिस नहीं देगी या टीसीएस नहीं देगी। What about other companies like Goldman Sachs and other companies? Goldman Sachs is available. Goldman Sachs is one company which is available only in few campuses across India. अब गोल्डमैन सैक्स की बात कर लीजिए, आप माइंट्री की बात कर लीजिए, ये सारी प्रोडक्ट कंपनीज हैं और बहुत बढ़िया कंपनीज। मतलब एक्चुअली में यही इन्हीं कंपनीज में आपको काम करना चाहिए, तभी मजा है इस पूरे खेल का। तो तो आप गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स में थोड़ा सा इशू हो सकता है कि आपको ई लिटमस में ना मिले, लेकिन माइंट्री आपको जरूर मिल जाएगा ई लिटमस के थ्रू, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप जब केपीएमजी या गोल्डमैन सैक्स, केपीएमजी भी आपको मिल सकता है ई लिटमस के थ्रू, लेकिन गोल्डमैन सैक्स के लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। तो गोल्डमैन सैक्स आईएम में भी सिर्फ 3 आईएम में ही जाती है, एबीसीएल 4 में जाती है, और मैकेंजी भी लगभग 4-5 में जाती है। तो गोल्डमैन सैक्स उस लेवल की कंपनी है। Vanchika Sachan is asking how to prepare for CoCubes examination. Is it similar to e-litmus? आप e-litmus तैयारी करेंगे तो आप CoCubes बड़े आराम से कराएंगे. There's nothing great in CoCubes. Yes. So Yeah. So the next question is from Mriga Khanna. Prepare. How to prepare for programming being from EC? How to prepare for programming? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा irrelevant है अगर आप 4th ईयर में हो, अगर आप 3rd ईयर में हो।
यू शुड, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स मोर ऑफ, अगर आप कभी भी देखिएगा जो प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्वांट की प्रॉब्लम होती हैं या रीजनिंग की प्रॉब्लम होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है बट सच्चाई यही है। अब आपसे कहा जाएगा प्राइम नंबर को, तो बहुत छोटी वाली बात कर दी, आप कुछ भी कर लो आप वो सारा का सारा क्वेश्चन घूम फिर के क्वांट और रीजनिंग पर ही आएगा। तो इट्स मोर अबाउट योर लॉजिकल स्किल्स। तो प्रोग्रामिंग से ज्यादा हमें रीजनिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमें बहुत ज्यादा नहीं भी आएगी तो उनका जो प्रोग्राम होता है, द इंडक्शन प्रोग्राम, दैट विल बी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ इट। तो आपको लॉजिक पकड़ना ज्यादा आना चाहिए। आप कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट कैसे करते हो इसका प्रोग्राम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। 2 फैक्टोरियल माइनस ये तो कैसे आंसर आएगा, कोई नंबर को डिफाइन करना है, प्राइम नंबर है तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसका सबसे अच्छा प्रोग्राम क्या हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके अंदर एक क्यूब है और क्यूब की आउटर लेयर निकाली गई तो अंदर कितने छोटे क्यूबलेट्स बच जाएंगे। तो ये जो रीजनिंग की प्रॉब्लम्स है इन पे आपको ध्यान आना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तो देन दे वुड नॉट बी, हमारे एरा में तो होता ही नहीं था कि आप आईटी से हो कि सीएस से हो, अगर आपके अंदर दिमाग है, रीजनिंग एबिलिटी, तो यू विल बी एबल टू गेट इनटू आईटी कंपनी, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। That's what my belief is. Yeah. Any Yeah, other yeah. question? The next question is from Adambhav Mehrotra. How much Yeah. is the weightage of topic cubes in e-litmus? क्यूब्स अब थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अब जो क्यूब्स वाला टॉपिक है अब इलिटमस में उतना नहीं आता है, बट यू कैन हैव क्यूब्स टॉपिक इन पेपर्स लाइक एमकैट एंड को क्यूब्स, द अदर पर्सन वाज आस्किंग। तो एमकैट और को क्यूब्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन अब क्यूब थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया है। अब ना तो कैट में आता है ना तो इलिटमस में आता है, और टीसीएस भी अब अवॉइड कर रही है उसको। तो थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया, प्रेडिक्टेबल टॉपिक हो गया। Yeah. Yeah. So, guys, we have provided the feedback link. Kindly fill it. And this is the attendance link also. The attendance will be marked on the basis of feedback link. So, kindly fill it. So, the next question is from Amon Verma. How can I prepare for CAT? मैंने लास्ट वाले कैट वाले सेमिनार में भी बोला था, दिस इज ऑल इन रूट टू मोस्ट। आप अगर इस ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो जहाँ पीएसआईटी या जहाँ पे इन्फोसिस आती है, तो इशू यहाँ पे ये होगा कि अगर इशू क्या आपके लिए फायदेमंद होता है, इन्फोसिस इज मच मोर इंक्लाइंड, मतलब if you have a company like Infosys in the kitty, then the preparing for Infosys will make you actually, the preparation of Infosys will be in route to preparation to CAT। तो आप इन्फोसिस जैसी किसी कंपनी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ई लिटमस की तैयारी करना आसान होगा, और आप ई लिटमस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कैट के लिए इस्तेमाल सही करना होगा, क्योंकि तीनों ही पेपर में इन्फोसिस, ई लिटमस एज वेल एज कैट, ऑल दीज थ्री पेपर्स हैव क्वांट, रीजनिंग एंड वर्बल। तो ये सबसे अच्छी बात है अगर आप ऐसे किसी भी कैंपस को बिलोंग करते हो जहां पर आपके पास इन्फोसिस है, तो ऑब्वियसली आपके पास एडेड एडवांटेज होगा अगर आपका कॉलेज तैयारी करा रहा है आपको। तो आप तीनों सेक्शन पे करिए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप उल्टा सोचिए, आप इलिटमस को ये मत सोचिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू कैन टेक इलिटमस एज वन ऑफ द मॉक कैट्स फॉर द कैट। तो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इलिटमस के कैट से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो अगर आप यहाँ समझिए टीसीएस के एक आध क्वेश्चन भी आपको कैट से डिफिकल्ट मिल जाएंगे। या आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। नेक्स्ट। And the next question is from Mriga Khanna. How to register for all these exams like e-litmus? आप ई लिटमस जाइए, आप गूगल पे सर्च करिए ई लिटमस पीएच स्कोर, आपको ई लिटमस के पोर्टल पे मिल जाएगा, पहुंच जाएंगे, आप रजिस्टर कर दीजिए। सो देयर इज नथिंग ग्रेट इन इट। आप अभी गूगल पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा ई लिटमस, हाउ टू रजिस्टर फॉर ई लिटमस, यू विल गो टू द ई लिटमस वेबसाइट। आई डोंट रिमेंबर द वेबसाइट, हेंस एल्स आई वुड हैव टोल्ड यू। हाँ जी। So, so guys, anyone has any query, please to ask, or else we shall end to the. आई थिंक Piyush Bhatia is asking something, you have missed. Yeah. Ayush. Aviral has asked something, I think, I believe. So it might be. He has Aviral, sent the question to you. okay. Yeah. Viral is saying the question set from below points in online test funda is sufficient in preparation. Yes. I think obviously not in case of verbal, because in case of verbal, going through reading comprehensions will not help you out. That is just a practice that will have a minimum 10% effect on the entire preparation. But as far as quant and reasoning is concerned, it should be sufficient. Yeah. Himanshu
Anshu also has asked one thing. Goldman Sachs has started an aptitude which is the 9th of this month. So any trick? One trick can be that go for data arrangement like anything for Goldman Sachs. Second is number series that will come in large number in Goldman Sachs. The other thing is problem based on probability will be in good number. So these three topics are the topics which you should take care while writing Goldman Sachs. There are Yes, no more guys. questions. Guys, if you have any questions, please do ask. So, Okay. So let's I don't, keep it. Okay. yeah, Thank yeah. So, as all good things come to an end in life, so is the webinar. On behalf of Technocrat, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed to this webinar organized by our group. I thank our chief guest and resource person, Mr. Nikhil Bansal sir. We are really enlightened with your knowledge and presence. Our heartfelt thanks to our students for active participation. With these warm words and a kind message, we move on to the end of today's webinar. Thank you.